Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know, we are discussing about database management system. Okay, and in my previous video, I have discussed the database terms like tables, column, DBMS, cardinality, keys, and many things. So today, I'm going to discuss with you the structure query language. Yes, we already discussed it in my previous video, but today we are going to see actually the architecture, the process of structure query language. Okay, so without wasting timing, let's get started and understand about SQL. So here, what definition says here of the database or structure query language is SQL is a standard language for accessing and manipulating database. Simple. SQL क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है which help us to access and manipulate database. Right? Now database is a physical file which is stored inside in file format. Okay. Now SQL command are used to create, transform and retrieve information from relational database management system RDBMS and also used to create interface between the user and the DBMS database. Now, what are the role of DBMS is? Okay, DBMS का role क्या है? Which makes an interface between the user like us and the database, which is physically exists inside the computer system. Okay. Now, with the help of SQL query, we are going to access the information. We are going to manipulate the information and manipulate the database. Okay. By using SQL command, one can search any data in a database and perform other functions like create table, add records, modify data, remove records or row, drop a table, etc. ओके बेटा, सो यहाँ पर एसक्यूएल कमांड आपको हेल्प करता है कि आप डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकें. मींस जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है, एसक्यूएल प्रोवाइड अ वे टू डू सो. Okay, so what are the tasks we can perform with the help of SQL? So these are the tasks. SQL can retrieve data from database. Database से अगर आपको data access करना है, if you want to make a report to get data from more than one table, you can use SQL command. SQL can insert record in a database. अगर database के अंदर record को add करना है, insert करना है, तो उसके लिए भी आपको SQL command चाहिए. SQL चाहिए. SQL can update record, yes. अपडेट करना रिकॉर्ड को, चेंजेस करने हैं डेटा के अंदर, तो भी आप SQL लिखते हैं. SQL कैन डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस. SQL कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस. ठीक है, SQL क्रिएट न्यू टेबल इन डेटाबेस एंड सो ऑन. राइट, so these are the tasks we can perform with the help of SQL. Now next thing we are going to see here, how to create a table, and this which is also known as create table command. बेटा इसके पहले मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस में वी कंसीडर डेटा इन अ टेबल. राइट, यानी कि हमारा जो टेबल होगा डेटाबेस का कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स होंगे. राइट, टेबल के फॉर्म में हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर. नो क्रिएट टेबल कमांड आपको हेल्प करता है कि आप एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल क्रिएट कर सकें. ठीक है, अगर आपको डेटा एक्सेस करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, डेटा को स्टोर करना पड़ेगा. डेटा आपको डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, और वो क्रिएट कहाँ पे करेंगे,
एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आपको क्या डेटा को स्टोर करना है, वो है स्ट्रक्चर टेबल। नाउ तो क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। अब बेटा यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड किस एसक्यूएल कैटेगरीज में आता है, कमांड कैटेगरीज में? वो आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रक्चर विद हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल, राइट? In this command we need to give full information about the table such as number of columns, type of each column and constraints, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में प्राइमरी की, यानी कि अगर आप टेबल को क्रिएट करना है तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, टेबल यानी टेबल का नाम, नंबर ऑफ कॉलम, वो कॉलम्स क्या होंगे, उन कॉलम का टाइप क्या होगा, और अगर टेबल पे कुछ यानी कॉलम्स पर कुछ अप्लाई करना है रूल तो वो क्या होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी बेटा। टेबल क्रिएट करने के टाइम पे टेबल का नाम, उस टेबल में कितने कॉलम होंगे, उस कॉलम का टाइप क्या होगा, और अगर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना तो वो कंस्ट्रेंट क्या होंगे। ठीक है, अब जैसे तीन चीजें क्या है बेटा आपके देखना है, नेम ऑफ द टेबल, नेम ऑफ द फील्ड्स एंड डेफिनेशन एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ ईच फील्ड। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल वी हैव द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट, कौन कौन से हैं? नॉट नल एंड प्राइमरी की। ठीक है, इसके बाद और भी कंस्ट्रेंट हमारे पास है, फॉरेन की भी हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल टेबल क्रिएशन के टाइम पर नॉट नल एंड प्राइमरी की। नॉट टू चेक अ कॉलम कैन नॉट स्टोर नल वैल्यूज। अब यहाँ बेटा नल का मतलब क्या है? नल का मतलब नॉट अवेलेबल। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई एजुकेशनल फॉर्म भर रहे हैं और आपसे बोला गया कि आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है, एट दैट टाइम यू डोंट हैव ईमेल आईडी, तो आप वहां पे डैश कर देते या फिर नॉट अवेलेबल लिखते, NA लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट नल का मतलब नॉट अवेलेबल का अवेलेबल है। ठीक है, नॉट अवेलेबल मतलब अभी हमारे पास वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इन फ्यूचर या कुछ दिन के बाद वो वैल्यू आ जाएगी तो वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड, राइट? नल का मतलब जीरो नहीं होता, नल का मतलब ब्लैंक स्पेस नहीं होता। ठीक है, नल का मतलब नॉट अवेलेबल। नाउ इसका मतलब नल वैल्यूज का मतलब अगर आपने कोई कॉलम क्रिएट किया और आप चाहते हैं कि यहाँ पर नल वैल्यूज ना हो, उसके लिए आपको कौन सा रूल लगाना है? नॉट नल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी की। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है प्राइमरी की क्या होता है। ठीक है, किसी कॉलम पर अगर हम प्राइमरी की लगाते हैं तो उस कॉलम पे हमेशा यूनिक वैल्यू आती है। टू चेक दैट कॉलम हैव एन यूनिक आइडेंटिटी व्हिच हेल्प टू फाइंड अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक पर्टिकुलर कॉलम पर जितनी भी वैल्यूज आए वो यूनिक हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलम पर प्राइमरी की सेट करना होगा। और जैसे आप प्राइमरी की सेट करते हैं तो उस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होगा? यूनिक होगी। उस वैल्यू को हम डोमेन भी बोलते हैं ना। ठीक है, अब पर्टिकुलर कॉलम से हम पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेटा अभी आपको ये दो कंसेप्ट आपको सिर्फ खाली पता करना, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग क्या है? अब सिंटैक्स है। तो क्रिएट टेबल का ये सिंटैक्स है। ठीक है, क्रिएट टेबल, डेटा टाइप, साइज, कंस्ट्रेंट, ये क्या क्या है, चलिए उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल है, टेबल का नाम क्या? स्टूडेंट्स। ठीक है, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, उनका टाइप क्या होगा, साइज क्या होगा कॉलम का, और उसमें कोई कंस्टेंट है होंगे या नहीं, अगर होंगे तो क्या होंगे। अब इस स्ट्रक्चर से यानी कि हमारा क्या, एक टेबल का एक सिंपल सा हमको क्या दे दिया गया है, एक टास्क दिया गया, यू हैव टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल विद द फॉलोइंग रिकॉर्ड। अब इस टेबल के थ्रू हम क्या करना है? अपना डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और फीस। ठीक है, एडमिशन नंबर का टाइप क्या है? न्यूमेरिक होगा, इसका वैर होगा, इसका न्यूमेरिक होगा, इसका कैरेक्टर होगा, इसका न्यूमेरिक होगा, और इसका अब इसके बाद साइज भी देखो क्या दिया हुआ है, 3, 20, 20 है ना, ये दिया हुआ है। चलिए हम अब क्या करते हैं? हम टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या है? क्रिएट टेबल स्टेटमेंट आएगा, और उसके बाद क्या होगा? अब स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट। देखो ऊपर दिया हुआ है, टेबल का नाम क्या होगा? स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? स्टूडेंट।
अब इसके बाद क्या करना है बेटा, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाकर सबसे पहला कॉलम क्या है, एडमिशन नंबर लिख दिया, एडमिशन नंबर। उसका टाइप क्या होगा, न्यूमेरिक, यहाँ पे न्यूमेरिक लिख दिया। साइज क्या होगा, 3 लिख दिया। तो यहाँ पे इसको लिख दिया प्राइमरी की, ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, यानी एडमिशन नंबर हमारा प्राइमरी की बन गया। फिर नेम कॉलम है, नेम का टाइप क्या है, नेम का टाइप है varchar, यहाँ पे साइज दे दिया 20 और यहाँ पे नॉट नल। ठीक है, यहाँ पे नॉट नल क्या है, हमारा कंस्ट्रेंट है। इसके बाद बाकी सारे कॉलम में भी एज इट इज अप्लाई कर दिया। चलिए अब इसको एसक्यूएल में कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे अब आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, वो किससे करेंगे बेटा, माई एसक्यूएल से करेंगे। ठीक है, माई एसक्यूएल, चलिए अब चलते हैं अपने आईडीई में, माई एसक्यूएल में चलते हैं और इस टेबल को क्रिएट करते हैं। इसको ध्यान में रखकर कि एडमिशन नंबर हमारा कॉलम होगा, नेम कॉलम होगा। देखिए सभी कॉलम का जो नाम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। चलिए, और कॉलम के नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। देखिए, तो ये हमें ध्यान रखना है, कॉलम के नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कमांड, यहाँ पर हमने अपना सॉफ्टवेयर जो है माई एसक्यूएल का वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने माई एसक्यूएल, यहाँ पे देखो माई एसक्यूएल लिखा हुआ है, कंट्रोल पैनल में गए हम। अच्छा, ये कैसे आएगा, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। जैम्प, ठीक है, XAMPP, ठीक है, ये आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, गूगल पे जाकर आप सिंपल सर्च करेंगे जैम्प, ठीक है, डाउनलोड सिंपल लिखेंगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे डाउनलोड करके सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपके पास ये विंडो आएगी, जब आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपका यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है, ठीक है, कि आपका ये स्टार्ट हो गया है। अब इसको क्लोज कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम जाएंगे कहाँ पर, अपने CMD, इसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हमें माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को रन करना है। कैसे करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले हम जाएंगे, माई एसक्यूएल का जो पाथ है उसको हम चेक करेंगे। ये एक ही बार आपको करना है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। कहाँ गए हम, सी ड्राइव में। जब हमारा जैम्प सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे माई एसक्यूएल फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर इसके अंदर कहाँ पे जाएंगे, बिन के अंदर, और ये पाथ हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ये पाथ में कॉपी कर लेंगे, हमको इस सॉफ्टवेयर को रन करना है। बिन के अंदर हमारा माई एसक्यूएल है, ये कहाँ गया बेटा, ये माई एसक्यूएल, ये देखिए ये एप्लीकेशन, इसको रन करना है। ठीक है, चलिए जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट चेंज डायरेक्टली CD, एंड देन हम इस डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं, C:\jamp/mysql/bin, एंटर करते हैं, हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे mysql.exe को, mysql.exe। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करना है तो -u, ये बेटा जो हमने लगाया यहाँ पर, इसको बोलेंगे हाइफन। ठीक है, -u, ठीक है, स्पेस, यहाँ पे लिखेंगे रूट। अब रूट क्या है यहाँ पे बेटा, रूट यहाँ पे यूजर नेम है। ठीक है, फिर एक स्पेस करके एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, mysql.exe, इसको आप रन करने जा रहे हैं। ठीक है, और यूजर कौन होगा इसके लिए, इसलिए यहाँ पे यूजर के लिए -u लिखा, -u, एंड रूट, यहाँ पे रूट क्या है, यूजर नेम है, देन स्पेस पासवर्ड। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर अब करना है क्या, नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले शो डेटा बेसिस। अब आपको इस यहाँ पर जितने डेटाबेस है वो चेक करने, तो पहला कमांड क्या है, शो डेटा बेसिस। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस दिख रहे हैं आपको, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माई एडमिन एंड PPS DB, ये मैंने बनाया हुआ है, PPS DB करके मैंने बनाया, और एक हमारा डेटाबेस है टेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको टेस्ट डेटाबेस यूज करना है तो क्या करेंगे, यूज TEST, आपको सिर्फ इतना लेगा, आप उस डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने ये किया हुआ है, सेमीकोलन जरूर याद रखिएगा, सेमीकोलन यहाँ पर मस्ट है पास करना।
एंटर करेंगे। देखिए बेटा अभी जिस भी डेटाबेस में थे, ठीक है, उससे आप बाहर निकल के आए हैं और इस समय आपको देखिए पहले डेटाबेस नन था, कोई भी डेटाबेस आप नहीं थे, किसी भी डेटाबेस में नहीं, यहाँ पे देखो नन दिखा रहा था। अभी आप कहाँ पे आ गए, टेस्ट के अंदर, ठीक है, आप टेस्ट डेटाबेस के अंदर आ गए। अब इसके अंदर देखिए, अब अगर आपको यहाँ से भी बाहर जाना है तो क्या लिखेंगे, यूज PPSDB, ठीक है, क्या लिखना बेटा, यूज PPSDB सेमीकोलन एंटर। वापस से देखिए, यहाँ पे आप टेस्ट में थे, अभी आप कहाँ पे आ गए, PPSDB में आ गए, तो यहाँ पे डेटाबेस चेंज किया। अब इसके बाद और क्या करना है, अब हमने वे क्वेरी हमें यहाँ पे लिखनी है, कौन सी, क्रिएट टेबल कमांड की। तो चलिए क्रिएट टेबल कमांड क्या था हमारा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉलम क्या है, एडमिशन नंबर, नेम, टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। चलते हैं अपने यहाँ इसमें देखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, ब्रैकेट लगा के सबसे पहले एडमिशन नंबर, टाइप क्या होगा बेटा इसका, इंटीजर, और यहाँ पर और क्या दे देंगे, प्राइमरी की, कॉमा, फिर हमारा क्या आएगा, नेम, स्पेस नेम, varchar, साइज क्या देंगे इसका, सपोज 20, और यहाँ पे बेटा आगे क्या लगा देंगे, नॉट नल, फिर इसके बाद कॉमा, एडमिशन नंबर के बाद नेम के बाद क्या है बेटा, क्लास है, क्लास, और यहाँ पे टाइप कर दे देंगे बेटा यहाँ पर इंटीजर, ठीक है, फिर कॉमा, फिर आएगा सेक्शन, कैर, और यहाँ पे साइज देते हैं 1, फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पर, फीस, फीस टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। देखिए क्या लिखा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, एडमिशन नंबर, टाइप इंटीजर, प्राइमरी की, यहाँ पे नंबर के को हमने कन्वर्ट किस में किया, इंटीजर में किया, MySQL में नंबर यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी की, नेम, साइज दिया इसका varchar में है ना, फिर क्लास इंटीजर, फिर सेक्शन कैर, ठीक है, टाइप दिया इसका, देन फीस में टाइप क्या दिया, इंटीजर दिया। अब इसको हमने क्या किया, एंटर, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, ठीक है ना। अब हमको देखना है टेबल हमारे पास कितना है, तो क्या लिखेंगे, शो टेबल्स, ठीक है, शो टेबल्स समय, देखिए आपके पास स्टूडेंट नाम का एक टेबल आ रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या, इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो DESC डिस्क्राइब, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है, इससे क्या, अगर आपको टेबल का आर्किटेक्चर देखना है तो टेबल से नेम के पहले क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब एंड देन सेमीकोलन, तो आपको दिख जाएगा, देखिए एडमिशन नंबर, ठीक है, यहाँ पर नेम, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे फीस दिख रहा है, और सबका अलग अलग क्या है, इंटीजर है, varchar है, इंटीजर कैरेक्टर है ना, यहाँ पे नल, नल यानी कि दो जगह आप लोग को नल एंटर नहीं करना है, ठीक है, बाकी में आप कर सकते हैं, प्राइमरी की पहले वाले कॉलम पे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम अगर हम देखेंगे, हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं, अगर हमने लिखा सेलेक्ट रिकॉर्ड के लिए हमने स्टार फ्रॉम, क्या लिखेंगे बेटा, टेबल का नाम स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब इसके अंदर कोई रिकॉर्ड हमने एंटर तो किया नहीं अभी तक, इसलिए क्या निकल के आ रहा है, एम्प्टी सेट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टास्क है टेबल को क्रिएट करने के बाद, वो क्या करना है, इंसर्ट इनटू कमांड। अब जो नेक्स्ट कमांड हमारे पास क्या आया है, इंसर्ट इनटू कमांड, ठीक है। अब ये कमांड क्या करना है, हमको इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, क्या क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सबसे पहले टेबल का नेम आएगा, फिर कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम जितने भी कॉलम आपको वो लिख देना है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू लिखनी है, या तो फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू सीधा डाल सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। पहला वैल्यू हमारे पास एडमिशन नंबर 111 अनु जैन, क्लास 12 सेक्शन ए, फीस 250, ठीक है, ये रिकॉर्ड हमें ध्यान रखना है। चलिए तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू
टेबल का नाम क्या बेटा? स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? वैल्यूज। ऐसा भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम। कॉलम क्या क्या हमारे पास है? सबसे पहले एडमिशन नंबर है, एडी नंबर कॉमा एडमिशन नंबर। दूसरा क्या है? नेम। ठीक है। तीसरा क्या है? क्लास। चौथा क्या है? सेक्शन। पांचवा क्या है? फीस। अब इसके बाद क्या, एक ये सिंटैक्स हो गया। इसके बाद क्या? वैल्यू है ना? वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या एंटर करनी है? सबसे पहली वैल्यूज किसके लिए आएगी? आईडी नंबर के लिए, 111। नेम क्या है? अनु जैन। अब इसकी जो वैल्यू आएगी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी बेटा। देखो यहाँ पे आईडी जो न्यूमेरिक वैल्यू बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन जो वैर वैल्यू यानी कि कैरेक्टर वैल्यू है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे। तो यहाँ पे लिखा अनु जैन। देखिए पहले वैल्यू क्या? अनु जैन है। तो क्लास 12 सेक्शन है 2500। तो क्लास के बाद क्या? क्लास का टाइप क्या है हमारा? देखिए क्लास का टाइप यहाँ पे क्या रखा हुआ? इंटीजर है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, 12 कर दिया। अब इसके बाद क्या? सेक्शन क्या है? सेक्शन के लिए जो वैल्यू आएगी सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी, क्योंकि उसका टाइप क्या? कैरेक्टर है। यहाँ पे सेक्शन ए, फिर कॉमा करके दिया। फिर फीस कितनी है? 2500। उसके लिए भी देखो इंटीजर वैल्यू है ना। अब उसके बाद सेमीकोलन लगाया एंड देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। ठीक है। अब हमने फिर क्या किया? ये कमांड का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आपको देखो ये रिकॉर्ड दिख रहा है। ठीक है बेटा। इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। अब जो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो हम ये इंसर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे। दूसरा तरीका क्या है कि हम ये कॉलम का नाम ना लिखें, सिर्फ खाली वैल्यूज लिखें। यहाँ पे क्या जाएगा? 222। देखिए यहाँ पे 222 है। ठीक है। मोहित शर्मा, नाम क्या है? मोहित शर्मा, डबल नोट कॉमा के अंदर मोहित शर्मा। ठीक है। क्लास कौन सी है? 11th बी, 11th। यहाँ पे सेक्शन क्या है? बी। फीस कितनी बेटा? देखो यहाँ पर 4500 रुपए। ठीक है। तो 4500 ये रुपीज ज्यादा। अब देन एंटर कर देंगे। अगेन 1 रिफ्लेक्टेड। अब देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब 2 रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। ठीक वैसे ही तीसरा रिकॉर्ड क्या है? केपी गुप्ता 12 बी 3000। ठीक है। तो हमने क्या किया? ये देखिए थर्ड रिकॉर्ड क्या करेंगे? यहाँ से तीसरा रिकॉर्ड एंटर किया, लिख देंगे यहाँ पे किरण गुप्ता। ठीक है। रिकॉर्ड 12 किया, सेक्शन बी। यहाँ पे कितना फीस है? 3000 रुपीज। एंटर किया। ठीक है। वैसे ही आगे रिकॉर्ड भी है। अजीत कुमार 444। 33 के बाद क्या है? 444। अजीत कुमार। क्लास 10th ए 2000। क्लास 10th ए। यहाँ पे सैलरी सॉरी यहाँ पर जो फीस है वो है 2000। एंटर। ठीक है। अभी वापस से अगर हम सेम ईमेल सेम एडमिशन नंबर रखें, और इस बार हमने क्या किया? 555 की जगह हमने सेम 444 ही लिखा। अब देखिए आपके पास एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्राइमरी के में हमने बोला था यूनिक वैल्यू एंटर करने के लिए, हमने डुप्लीकेट एंटर की। नीरज सिंह। ठीक है। क्लास 12 सेक्शन बी। ठीक है। यहाँ पे 2500 रुपीज। अब जैसे हमने यहाँ पे एंटर करेंगे आपको देखेंगे आपको एक एरर मिलेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? डुप्लीकेट एंट्री 444 फॉर प्राइमरी, यानी कि इस कॉलम के लिए आपने एक डुप्लीकेट एंट्री की है। तो आपने क्या करना है? एंट्री को हटा के इसको 555 कर देनी है। फिर एंटर करेंगे। देखिए 1 रिकॉर्ड एंटर। ठीक है।
एंटर किया, ये देखिए आपके पास इतने रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, फिर कौन सा रिकॉर्ड 6 रोहन शर्मा 11th भी 2500। ठीक है, फिर इंसर्ट किया, शिव भूषण। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया 666 आरडी नंबर दे दिया, एडमिशन नंबर 12th में है, और यहाँ पर सेक्शन ए। ठीक है, और 4500। ठीक, ये हमने एंटर कर दिया, आ गया। अब फिर हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब बेटा आपको देख रहे होंगे ये रिकॉर्ड आपके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या कर देना है, कमिट। कमिट करने का फायदा क्या है कि ये रिकॉर्ड अब फाइल में परमानेंटली आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है, परमानेंटली आपकी रिकॉर्ड ये सेव हो जाएगा आपके डेटाबेस फाइल में। एंटर करेंगे तो क्वेरी ओके अफेक्टेड, क्लियर। अब यहाँ पे लिखा आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। तो देखा आपने किस तरह से टेबल का स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उसमें कैसे आपने रिकॉर्ड एंटर किया। क्लियर बेटा। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट कमांड देखना है वो क्या है हमारे पास, सेलेक्ट कमांड। ठीक है, सेलेक्ट में सबसे पहले हमें कॉलम फील्ड का मतलब समझ लेते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू व्यू टेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस। यानी एसक्यूएल डेटाबेस अगर आपको टेबल डेटा देखना है तो इसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड। ठीक है, बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड वी कैन गेट वन और मोर फील्ड इंफॉर्मेशन व्हाइल यूजिंग एस्टेरिस्क। ठीक है, या फिर स्टार बोलते हैं, एस्टेरिस्क स्टार बोलते हैं। वन कैन गेट ऑल फील्ड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होगा, इसको लगाने से आपको सारी फील्ड की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, या फिर आप कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना चाहते हैं तो कॉमा करके कॉलम का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्प्ले। अब देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले स्टूडेंट टेबल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया, डिस्प्ले स्टूडेंट टेबल इंफॉर्मेशन। तो क्या लिखना है आपको, सिंपल लिख देना है। देखिए कमांड में क्या लिखा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। आपको भी लिख देना है सेलेक्ट स्टार का मतलब ऑल फ्रॉम स्टूडेंट एंड सेमीकोलन एंड देन एंटर। आपको सारा रिकॉर्ड दिख रहा है, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड फीस दिख रही है। अब देखिए इसके बाद क्या है, दिस विल डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर टेबल। अब टू डिस्प्ले नेम एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट टेबल इंफॉर्मेशन, नेम एंड क्लास, सिर्फ खाली नेम देखना है और क्लास देखना, सारी इंफॉर्मेशन नहीं देखनी स्टूडेंट, हर एक फील्ड की रिकॉर्ड नहीं देखना है, सिर्फ खाली नेम और क्लास देखना है। तो क्या लिख देंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास। अब देखिए हमने यहाँ पर देखिए एडमिशन नंबर में ए कैपिटल, नेम में एन कैपिटल, क्लास में सी कैपिटल, सेक्शन में सी, है ना, एस कैपिटल। यहाँ पर हमने स्मॉल में एन लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में सी लिखा है। अब इसके बाद भी फ्रॉम क्या लिखेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स। आप एंटर करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। क्यों आ रहा है, बिकॉज एसक्यूएल इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, अपर केस लोअर केस यहाँ पर नहीं चलता है, यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट का नाम लिखना रहेगा, कॉलम के नाम सही लिखने होंगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा, भले वो अपर केस में या फिर लोअर केस में। ठीक है बेटा। अब देखा आपने दो कॉलम चाहिए तो आपने क्या लिखा, कॉलम को लिखा और कॉमा से ब्रेक कर दिया दोनों को, सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले नेम ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब देखिए यहाँ पे वेयर क्लॉज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या सारे इंफॉर्मेशन चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ नेम और क्लास चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले ओनली 10th क्लास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिर्फ खाली 10th क्लास का ही रिकॉर्ड चाहिए आपको, इसलिए यहाँ पे कौन सा कमांड आ जाएगा, वेयर। ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे देखो डिस्प्ले नेम, सिर्फ नेम पूछ रहा है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 10, ये हमारा कमांड हो जाएगा। लिखेंगे कि सेलेक्ट, देखिए आपने सिर्फ लिखा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, अब सिर्फ इतना लिखा आपने। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ सारे नेम आ गए। लेकिन अगर आपने लिखा वेयर और यहाँ पे लिखा आपने नेम के बाद क्लास लिखा, देखिए कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, कॉमा की एंटर किया एंड देन एंटर,
देखिए नेम आ रहा है, ठीक है, और क्लास आ रहा है। अब अगर आपने सिर्फ इतना लिखा, ऐसे लिखा वेयर क्लास इज इक्वल टू व्हाट 10, तो क्या होगा बेटा, सिर्फ 10th क्लास का नेम दिखेगा। वेयर क्लास 12, तो आपको सिर्फ 12th क्लास का नाम दिखेगा, नेम बच्चे दिखेंगे। आपने लिखा क्लास 11, तो आपको सिर्फ खाली क्लास 11 का दिखेंगे बच्चे, ठीक है। अब देखिए 10th में भी एक बच्चा है, 11th में भी एक बच्चा है, चलिए एक एक बच्चे बढ़ा देते हैं हम इसमें। 777, अमित सिंह, यहाँ पे 10th ए, और फीस कितनी है 2000, एंटर कर देते हैं। 1 रिकॉर्ड अफेक्टेड, यहाँ पे 888, रोहित यादव 11th सेक्शन ए, और यहाँ पे 2500 आगे। ऐसे एक रिकॉर्ड 999, ठीक है। विशाल मिश्रा, यहाँ पे हमने 11 ले लिया, बी किया, अब यहाँ पर, ठीक है, ये रिकॉर्ड हमने एंटर कर लिया, ठीक है। कमिट करेंगे ताकि आपका रिकॉर्ड परमानेंटली स्टोर हो जाए। अब इसके बाद करना क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखेंगे बेटा, स्टूडेंट। देखिए आपके पास रिकॉर्ड बढ़ गए, ठीक है। अब अगर आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, क्या लिखा आपने, वेयर क्लास इज इक्वल टू, क्या लिखा, सिर्फ खाली 11 लिखा, एंटर। तो 3 बच्चे आ रहे हैं आपके पास, जो सेक्शन बी में 2 है, सेक्शन ए में 1 है, ठीक है। फिर आपने लिखा क्लास 10, दोनों सेक्शन ए में है, ठीक है। अब कोई रिकॉर्ड हम बी में करना चाहते हैं तो बी वाला भी कर देते हैं, ठीक है। 100 रिया गौतम, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 कर दिया, सेक्शन बी, और यहाँ पे 3500, वन जीरो 110, ठीक है। इमरान खान 10 बी, और यहाँ पर 20, ठीक है। ये एंटर हमने, ये एंट्री हमने कर दी। फिर हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे कमेंट नहीं किया हमने, क्या लिख देना है, कमेंट। फिर सेलेक्ट, क्या करेंगे बेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए अब ये रिकॉर्ड आपके पास आ गया, ठीक है। तो एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, फीस आ गई। देखिए अब यहाँ पे एक फीस जो दे रही है, कितना दिखा रहा है, 25,000 दिखा रहा है, 2500 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ अपडेट करने की जरूरत है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, सेट। सेट क्या करना है, फीस वाला कॉलम इशू करना है, 2500 करना है, सबका तो करना नहीं है। वेयर, क्या लिखेंगे, इसको मैं आके और आपको बताऊंगा। वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एडमिशन नंबर किसका क्या है, 111, 25,000 हो गया ना, 111। अननोन कॉलम एडमिशन नंबर था, एडमिशन एडी नंबर है ना, एडमिशन 1 रो अफेक्टेड, चेंज
कमिट, फिर वापस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब देखिए सबको 2500 आ गए। क्लियर बेटा? 100, 110, 111 समथिंग आ रहा है, सबका रिकॉर्ड आ गया। अब आपने लिखा, अब देखिए यहाँ पर वेयर क्लॉज समझते हैं और अच्छे समझते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। अब वेयर क्लास इज इक्वल टू 12 किया तो आपको सिर्फ 12 क्लास के बच्चे दिखेंगे, ठीक है ना? 12 क्लास के बच्चे दिखेंगे। फिर सेलेक्ट 11 किया तो 11 क्लास के बच्चे दिखेंगे, ठीक है? 10 किया तो 10 क्लास के बच्चे दिखेंगे, ठीक? तो इस तरह से वेयर क्लॉज आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर नेम देखना है आपको, उस बच्चे का नाम देखना जिसका नाम रोहित है, ठीक है? तो कैसे दिखाएंगे? देखिए वेयर क्लास के क्या जाएगा, नेम, अब कैरेक्टर वैल्यू के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है? रोहित। अब देखिए यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है, रोहित नाम से कोई नहीं, रोहित यादव के नाम से है, ठीक है? तो YADA, अब एंटर करेंगे तो आपको रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है? ऊपर वाले रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब सिंटैक्स आपका सही है, लेकिन आपका कोई रिकॉर्ड नहीं से एम्प्टी दिखाया, ठीक है? रोहित यादव के नाम से रिकॉर्ड है तो आपको दिखा रहा है, ठीक है? तो कैरेक्टर के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वेयर क्लॉज के साथ लगाना है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए विदाउट सेट, ठीक है? अब अगर आपको सिर्फ खाली सेक्शन ए के स्टूडेंट देखने हैं, आपने क्या लिखा, वेयर नेम की जगह लिखा आपने सेक्शन, सेक्शन इज इक्वल टू, सिर्फ आपने देखना ए, भले वो किसी भी क्लास में हो। देखो आ रहा है 12th क्लास में ए सेक्शन, 10th क्लास में ए सेक्शन में, ठीक है? इतने रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, क्लियर? और अगर आपने कहा कि नहीं मुझे 12th क्लास में जो सेक्शन ए में जितने हैं वो देखना है, तो यहां लिखा एंड, क्या लिखेंगे, एंड क्लास इज इक्वल टू 12, दोनों कंडीशन आनी चाहिए, सेक्शन ए हो और वो भी किस क्लास का, 12th क्लास का। एंटर करेंगे तो देखिए क्लास 12th में सेक्शन ए के ये बच्चे आ रहे हैं, जो 12th में दो बच्चे हैं क्लास 12th के सेक्शन ए में, ठीक है? क्लास सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं क्लास 12th के, यहाँ पे एंटर करके पता कर सकते हैं, दो बच्चे क्लास 12th में, ठीक है? ये सब तो वेयर क्लॉज आपको हेल्प करता है बेटा कि आप कंडीशन के बेस पर रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकें, ठीक है? तो आपको वेयर क्लॉज का यूज करना पड़ता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, ऑपरेटर यूज इन एसक्यूएल कमांड। अब कैसे हम ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे करेंगे तो वो भी हम देख लेंगे। ऐसा अगर हमने प्लस लगा दिया, देखो प्लस का यूज कैसे करेंगे, देखिए हमने लिखा सेलेक्ट, अब हमने यहाँ लिखा 10 प्लस 20 और यहाँ पे क्या लिखा, सेमीकोलन एंड एंटर। देखिए आपको वैल्यू क्या मिले, 10 प्लस 20 का क्या 30 मिले, यानी न्यूमेरिक वैल्यू को अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो क्या मिला, 30 मिल रहा है ना, 10 प्लस 20। अगर मैंने लिखा सेलेक्ट 10 मल्टीप्लाई 20 एंटर तो क्या मिल रहा है, कॉलम का नेम 10 मल्टीप्लाई 20 दिखा रहा है और वैल्यू क्या दिखा रही है, 200, ठीक है? हमने लिखा वापस से एज, यहाँ पे लिखा एज प्रोडक्ट, तो देखिए कॉलम का जो 10 इंटू 20 दिखा रहा था, अब वो क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट 200, इसका 10 इंटू 20, ठीक है? या फिर पहले वाले का एज क्या लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉलम का नेम कैसे चेंज करेंगे रिपोर्ट में, ठीक है? यहाँ पे अब रिपोर्ट में कॉलम का नेम चेंज कर रहे हैं, एज क्या लिखेंगे, टोटल 30, ठीक है? लेकिन अगर प्लस का साइन अगर आपने किसी कैरेक्टर के साथ लगाया, जैसे कि ऐसे लिखा सेलेक्ट अमित प्लस शर्मा, ये लिखा आपने, अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए,
दोनों को कॉन्कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा आएगा, 0 आएगा क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होगा इसके साथ। कॉन्कैटिनेट होना चाहिए, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़नी चाहिए। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, कॉन्कैटिनेट होगी, जुड़ेगी। जैसे कि सेलेक्ट, अब टेबल हमारे पास क्या है, लिखा अमित प्लस शर्मा फ्रॉम डुअल। ये डुअल हमारा एक टेबल है, ठीक है, जो एक डमी टेबल है डुअल। इसमें भी देखो ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर हमने अमित शर्मा, ये फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम है ना, ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा अपने पास, हमारे पास भी टेबल के अंदर जो है DESC में, अगर हमें स्टूडेंट टेबल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम हैं करेक्टर के, एक सेक्शन और एक है नेम। ठीक है, तो लिखते हैं सेलेक्ट नेम प्लस सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0 0 0 0 0 आ रहा है। ठीक है, दोनों में एडिशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ है, यहाँ पे क्या किया गया, टेबल को फर्स्ट नेम एंड ज्वाइन जोड़ दिया गया, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम जोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखो अनु जैन एक साथ मिल रहा है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, सेकंड नेम को। अब यहाँ पे सैलरी टेबल है, ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी टेबल को हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके इसमें रिकॉर्ड दिखाएंगे। क्लियर बेटा, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब मान लो ये मंथली फीस है, किसी बच्चे की मंथली फीस है, तो इसकी एनुअल फीस कितनी जमा कर रहा है ना, तुमने क्या लिखा, सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, फीस मल्टीप्लाई, सॉरी ध्यान से देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब आपको करना कि इस फीस में हमें क्या करनी है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तुमने क्या लिखा, सेलेक्ट फीस मल्टीप्लाई 12 फ्रॉम, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, स्टूडेंट। तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आपको दोनों अलग अलग चाहिए तो आपको अलग कर सकते हैं फीस। मैं आपको सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए कैसे हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है, कैसे ऑपरेटर अप्लाई। ये देखिए हमारी क्या है, फीस है बच्चों की, और इसके 12 से अप्लाई मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, अगर 3500 एक महीने में दे रहे हैं तो 12 महीने में कितनी फीस जा रही है उसकी, 42,000 के आसपास जा रही है। 2,000 दे रहे हैं तो 24,000 रुपये जा रही है महीने की। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई को या फिर एडिशन ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल के साथ। ठीक है, जैसे मुझे देखना है, एक रिकॉर्ड बनाना है, सेलेक्ट एडमिशन नंबर, ठीक है, कॉमा नेम, कॉमा, ठीक है। अब नेम के बाद हमारा फीस कॉलम आ जाएगा, कॉमा, फिर फीस के बाद मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 12, फ्रॉम क्या लिखा, स्टूडेंट, सेमीकोलन। तो देखिए आपको एक रिपोर्ट में क्या आ रहा है, देखिए ये कॉलम हमारे टेबल में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल फीस करके कॉलम लिख सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट में दिखाएगा टेबल के डेटाबेस के अंदर नहीं, ठीक है ना, रिपोर्ट जो हमारा रिपोर्ट अभी आ रहा है उसमें दिखेगा। कैसे, हमने लिखा एज एनुअल एनुअल फीस, ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर एडमिशन नंबर, नेम, फीस और एनुअल फीस ये आ रही है। ठीक है, सो बेटा आई होप you understand the concept of SQL, ठीक है, in this video. If you have any doubt, any query, you can personally WhatsApp me and ask me by call and by WhatsApp. Okay बेटा,
Thank you student for watching it.